Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, students. I welcome you all to lecture number 7 of the course of Basic Electronics. In today's lecture, we are going to complete the last numerical of the Clipper circuits, and we will be starting with a new topic called clampers. Okay, now we are on question number 9, which is the last practical example of Clipper circuits. Here we are given a parallel clamper again, and yes, we have to consider the diode as a practical one. We have a diode in the reverse direction, and we have a DC bias supply. The sine wave is not given, but a triangular wave is serving here as the input, having a maximum value of plus 16 and minimum value of minus 16. Again, we will be applying KVL in this circuit in this direction to find the transition voltage. That will be minus of Vn plus of Id into R minus the diode voltage plus 4 equal to 0. Same equation, minus Vn plus Id into R minus diode voltage plus 4 equal to 0. Since it is given that the diode is a practical one, we will be putting Vd equal to 0.7 and Id equal to 0. Id 0 put किया, Vd 0.7 put किया. Equation में what we get transition voltage as 3.3 volt. Now after obtaining this voltage, we will again go back to the original circuit and look at the direction of the diode. Since I can clearly see that the negative terminal of the diode is facing the positive terminal of the supply, therefore I can say that the diode will be on for Vin smaller than the transition voltage, and it will be off for Vin greater than the transition voltage. रिवर्स सिनेरियो है यहाँ पे. अच्छा, इन दोनों केसेस के लिए ही मुझे आउटपुट वोल्टेज फाइंड करना है कि जब Vin 3.3 से कम हो और डायोड ऑन हो रहा हो तो क्या आउटपुट आएगा, और जब Vin 3.3 से बड़ा हो रहा हो और डायोड उस वक्त ऑफ हो तो क्या आउटपुट आएगा. वी विल बी सीइंग बोथ दीज इन स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3. Okay, in step number 3 I can see that I am talking about Vn less than 3.3. इस पे डायोड ने ऑन होना है, तो मैंने क्या किया, डायोड की जगह सप्लाई लगा दी. नाउ इट इज़ वेरी वेरी एविडेंट ओवर हियर that since in the question the negative terminal of the supply was on the upper side, therefore I have also placed the 0.7 supply in the same direction. The DC biasing supply is placed as it is, and now I have to start reading the voltages starting from the top to the bottom, like minus of 0.7 and plus of 4. This is my output voltage, which is 3.3 volt. As I told you earlier that in case of parallel clipper, the transition voltage and the voltage output when the diode is on are both same, so I can clearly match that the transition voltage was also 3.3 volt, and when I am looking at my circuit and the diode is on, the output is also 3.3 volt. This makes me very clear that I have done correct calculations. Okay, now let us also look at the input waveform. Plus 16 minus 16 was already given. It is all, we have calculated the transition voltage and I have plotted it over here, not according to the scale, just by an approximate analysis. 3.3 पे मैंने अंदाजे से एक लाइन ड्रॉ कर दी, and here I am marking the portion of the waveform where the diode will be on. मैंने क्लियर बताया है कि 3.3 वोल्ट से कम पे ऑन हो रहा है. तो अब आप देखें 3.3 वोल्ट की लाइन ये रही, इससे कम पे जो पोर्शन बन रहा है ये रहा, जिसको मैंने मार्क किया हुआ है, इस पे डायोड ऑन हो रहा है, इस पे डायोड ऑन हो रहा है, इस ट्रायंगुलर पोर्शन पे डायोड ऑफ है, इस ट्रायंगुलर पोर्शन पे डायोड ऑफ है. अब मैंने ये भी देख लिया है दैट व्हेन द डायोड विल बी ऑन इट विल बी हैविंग अ फिक्स्ड आउटपुट वोल्टेज ऑफ 3.3 वोल्ट. दैट इज़ व्हाट आई शुड ड्रॉ ओवर हियर कि इतने पोर्शन पे
मेरा आउटपुट फिक्स आ रहा होगा प्लस 3.3 वोल्ट। फिर जहाँ पे ये डायोड ऑन हो रहा है उस पे मेरा आउटपुट आ रहा होगा प्लस 3.3 वोल्ट एंड सो ऑन। जहाँ पे ये मेरे पास वी इन 3.3 से कम नज़र आ रहा है, आउटपुट फिक्स होगा प्लस 3.3 वोल्ट। नाउ लेट अस गो टू स्टेप नंबर 3। Here I can see that the diode is off, and this is happening when the value of the supply voltage is greater than 3.3 volts. I have drawn the circuit question again by showing the diode as open circuit. I told you in parallel clipper, whenever the diode is off we have to apply the KVL, and I will be doing the same thing again. Minus of Vn प्लस ID इंटू आर, और इन दोनों के वोल्टेज की जगह एक ही नाम लिखूंगी, प्लस वी नॉट इक्वल टू 0। यही लिखा हुआ है। ID 0 पुट किया बिकॉज द डायोड इज ऑफ, आई गेट वी इन इक्वल टू वी नॉट, एंड आई ऑलरेडी न्यू दैट when the diode is off in parallel clippers the output voltage becomes equal to the input voltage, and this is the same thing which I am getting, and I am again now sure that I have done correct calculations. जिस पोर्शन में मुझे डायोड ऑफ नज़र आ रहा है, ये ऊपर वाला ट्रायंगुलर, इसमें जो इनपुट है वही आउटपुट पे पहुंच जाएगा। तो ऐसी ट्रायंगुलर वेव पहुंचेगी बिल्कुल, जिसका मैक्सिमम वोल्टेज भी 16 ही होगा, ये यहाँ बना हुआ है, और इसका दायरा ट्रायंगुलर वोल्टेज यहाँ से लेके यहाँ तक उठ के पहुँचनी है। तो देखिए इस पॉइंट का वोल्टेज 3.3 होना चाहिए था, वो पहले से 3.3 है, ये रहा ये रहा। तो 3.3 से 16 वोल्ट आउटपुट पे आ रहे होंगे जब डायोड ऑन है, और इस तरह से आपका आउटपुट बन रहा होगा। आई होप दैट आफ्टर स्टडिंग ऑल दीज सर्किट्स ऑफ क्लिपर्स द कैलकुलेशन माइट हैव बिकम ईजी फॉर यू। हाँ, regarding the naming of this circuit I can clearly see that this circuit is a biased negative clipper। ठीक है, biased है और इसने नेगेटिव पोर्शन को डायोड के कट ऑफ कर दिया है, तो मैं कह सकती हूँ कि ये नेगेटिव क्लिपर तो है लेकिन बायस्ड पैरेलल नेगेटिव क्लिपर। इसी तरह से आप बाकी तमाम सर्किट्स को नाम दे सकते हैं जिसमें नेगेटिव पोर्शन आंसर में आ रहा है, आप उसको कह देंगे कि ये पॉजिटिव क्लिपर है। बायस्ड था या नहीं वो आप देख लेंगे, सीरीज था या नहीं वो आप देख सकते हैं। यू कैन गिव इट नेम, टर्म्स को आप रीअरेंज कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक ऑफ क्लैम्पर्स। Clamper circuits are also another example or application of diodes. However, they are different in operation as compared to clippers or limiter circuits. Now for this purpose let us see the input waveform which is shown over here. Usually when we are given any input waveform, its center or the reference line or the mean line is at 0 volt, and this has some positive value, this has some negative value. This is the usual way that we usually have. However, if I give this input waveform to some circuit such that the 0 volt line goes above and my complete wave shifts down or below the 0 volt such that the center line becomes a negative value, or suppose if I give this input to a circuit and it gives me output such that the 0 volt remains below and the complete wave shifts to a positive voltage such that the center is also at some positive voltage, then all these circuits who are producing this voltage are called as clampers. क्लैम्प मीन कि किसी हाई पोजीशन पे जाके उसको फिक्स कर देना। तो ये इनपुट वोल्टेज के वेव सेंटर पॉइंट को क्लैम्प कर रहा है, उठा के पहुंचा रहा है किसी नेगेटिव वोल्टेज पे, ये वेव के सेंटर पॉइंट को पहुंचा रहा है किसी पॉजिटिव वोल्टेज पे। ये इसका रेफरेंस लेवल, एवरेज लेवल या सेंटर लेवल चेंज कर रहा है। तो वो सर्किट जो डीसी या रेफरेंस वोल्टेज लेवल को चेंज करके किसी नेगेटिव वोल्टेज या पॉजिटिव वोल्टेज पे पहुंचा दें, वो सर्किट्स क्लैम्पर सर्किट्स कहलाते हैं। जिसने नेगेटिव वोल्टेज पे क्लैम्प करा वो नेगेटिव क्लैम्पर कहलाएगा, जिस क्लैम्पर सर्किट ने वेव के सेंटर को पॉजिटिव वोल्टेज पे पहुंचा दिया वो पॉजिटिव क्लैम्पर कहलाएगा। लेट अस सी द टाइप्स। Okay, before we go and see the types of clamper, we should see
A few basics of clamper based circuits. A clamper circuit will essentially be consisting of a diode, capacitor and resistor. यानी कि unlike the clipper circuits, clamper circuit have an additional component which is actually the capacitor. तो क्लैम्पर सर्किट में डायोड भी होता है, रेजिस्टर भी होता है. इन एडिशन टू दैट इट हैज़ अ कैपेसिटर. And also similar to the clipper circuit which had DC supplies, a clamper circuit can also have a DC supply, and of course it provides extra shift. Extra shift in simple terms, it adds to the original voltage or the AC voltage. Okay, this is the point which I am not going to discuss right now, but we should see that I will be discussing this point at the end, but at least we should know that the resistor and capacitor of the circuit cannot be simply placed using our own choice. हम अपनी choice से आँख बंद करके कोई भी resistor और capacitor की value को नहीं रख सकते, but we have to find the value of resistor and capacitor depending on the input frequency. क्योंकि अगर ये कुछ मिसमैचिंग होगी तो हमें हर हाल में हमारी जो वेव मिल रही होगी वो सही नहीं मिल रही होगी. वी विल और आई विल बी इन फैक्ट डिस्कसिंग दिस पॉइंट इन डिटेल एट द एंड, एंड देन दिस पॉइंट विल बी क्लियर. एट दिस पॉइंट वी शुड ओनली नोट दैट देयर विल बी एन इनपुट वेव फॉर्म हैविंग सम फ्रीक्वेंसी. वी कैन कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ दैट इनपुट वेव फॉर्म यूजिंग इट्स फ्रीक्वेंसी. उसका जो टाइम पीरियड है वेव का, इनपुट की वेव का, और आर और सी की वैल्यूज़ का प्रोडक्ट, आर सी की वैल्यूज़ का प्रोडक्ट इनपुट वेव के टाइम पीरियड से बड़ा आना चाहिए. इस वक्त इसको वर्डिंग्स की फॉर्म में याद रखें, हम इसको आगे जाके भी कैलकुलेट करेंगे. अच्छा, सिमिलर टू द क्लिपर सर्किट्स, क्लैम्पर्स का इनपुट भी साइन हो सकता है, ट्राइंगुलर हो सकता है, इट कैन बी स्क्वायर वेव. वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज a clamper circuit will also be given input as a positive wave and a negative wave. clamper को भी positive negative inputs दोनों ही दिए जाएंगे, but we have to inspect the direction of the diode ourselves. हम डायोड के डायरेक्शन को सर्किट में खुद से ऑब्जर्व करेंगे और हम वहाँ से सॉल्व करना शुरू करेंगे जहाँ पे डायोड ऑन हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल मुझे नज़र एक सर्किट में आ रहा है कि ये जो डायोड है वो नेगेटिव साइकिल में ऑन होगा, पॉजिटिव में ऑन नहीं होगा. तो मैं इस सर्किट का नेगेटिव साइकिल पहले सॉल्व करूँगी, पॉजिटिव साइकिल को बाद में सॉल्व करूँगी. अगर मुझे एक डायोड ऐसा सर्किट में नज़र आ रहा है जो कि मुझे पता चल रहा है कि वो पॉजिटिव साइकिल में ऑन होगा, तो उसको मैं पॉजिटिव साइकिल पहले सॉल्व करूँगी, नेगेटिव साइकिल बाद में सॉल्व करूँगी. ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कैपेसिटर जो है उसकी वर्किंग उस वक्त स्टार्ट होती है, या जो वो वोल्टेज है वो उस वक्त स्टोर करता है जब डायोड ऑन होता है. सो wherever I find that the diode is on in that cycle, I have to start solving from that cycle. Let us see that. अच्छा, देखें मैंने बताया है डायोड अगर इस तरीके से लगा हुआ हो वर्टिकली कि पॉजिटिव टर्मिनल उसका ऊपर हो, तो हम पॉजिटिव साइकिल से सॉल्व करना शुरू करते हैं. मैंने आसानी के लिए पहले ही बता दिया. और अगर मुझे सर्किट में क्लैम्पर के अंदर डायोड अपसाइड डाउन नज़र आ रहा हो या नेगेटिव साइकिल नेगेटिव टर्मिनल ऊपर नज़र आ रहा हो, इन दैट केस वी स्टार्ट सॉल्विंग द सर्किट फ्रॉम द नेगेटिव साइकिल ऑफ द इनपुट. ये अभी आके एग्जाम्पल में क्लियर भी हो जाएगा. ओके, जिस साइकिल में डायोड ऑन नज़र आए, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, जब मैंने सॉल्व करना शुरू कर दिया, जिस साइकिल में हमें डायोड ऑन नज़र आएगा, द आउटपुट वोल्टेज फॉर दैट साइकिल कैन बी ईजिली रेड फ्रॉम द सर्किट. जिस साइकिल में डायोड ऑन होगा उसका आउटपुट वोल्टेज मैं डायरेक्टली सर्किट को देख के नोट कर सकती हूँ. And at that time and in that cycle I will actually be calculating the capacitor voltage using the output voltage that can be easily read from the circuit. यानी जब साइकिल में डायोड ऑन नज़र आएगा उसका आउटपुट वोल्टेज मुझे बड़ा क्लियर सर्किट को देखने से ही पता चल रहा होगा, और इन सब की मदद से आई विल बी कैलकुलेटिंग द कैपेसिटर वोल्टेज. नाउ ड्यूरिंग द साइकिल व्हेन द डायोड विल बी ऑफ, we will have to calculate the output voltage. First of all,
it will not be known to us, similar to the previous case. But the capacitor voltage that we calculated in the previous cycle will be used here to find the output voltage. ये कैसे होगा हम देखते हैं. Okay, similar to the Clipper circuits, we can solve the clamper circuit using both the ideal and practical model, but for simplicity purpose and as given in the book, we will be doing it with ideal diode drop model only and with square wave inputs, because in case of square wave inputs, the value of the input remains same during the positive cycle and during the negative cycle. अगर पॉजिटिव में +5 है तो पूरे पॉजिटिव साइकिल में +5 ही चल रहा होगा, और नेगेटिव में -5 है तो वो -5 ही चल रहा होगा. However, if we have a sine or a triangular wave, at any instance of time the value of the positive input changes. So it is difficult to solve sine wave for clamping operation on paper. ठीक है, तो हम क्लैम्पर सर्किट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी सॉल्विंग इट विद स्क्वायर वेव फॉर्म. Secondly, it can be solved with both the ideal and practical diode concept, but we will only be considering the ideal diode concept. Let us go further. Okay, here we are on a clamper circuit. We have to consider the diode as an ideal one. A capacitor can be seen, a diode is seen in parallel to the resistor. Whatever will be the voltage of this diode will be the voltage of this resistor, because they are in parallel and voltage remains same in parallel, and their voltage is actually considered as the output voltage V0. We have a square wave supply over here having a value of +20, maximum, minimum 20, and minimum voltage is the -20 volt during the negative cycle. We have to consider the diode as an ideal one for this analysis. First of all, let me make one thing very much clear, that in case of Clipper circuit, whatever analysis I presented on the slides should be done on the paper along with the complete wordings, and similarly whatever wordings are written here on the slides for the solution of clamper circuits, all these wordings should be present in the solution in your paper, otherwise no marks will be given. ठीक है, क्लिपर सर्किट और क्लैम्पर सर्किट की एनालिसिस में मैंने स्लाइड्स पे जो वर्डिंग, जो डायग्राम्स बनाई हैं वो आपने पेपर में बनानी है, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे. Okay, so I now start with the inspection of this diode, and I see that its positive terminal is facing the positive terminal of the supply. That's why I can clearly say that it will be on during the positive cycle. So I wrote that during the positive cycle the diode will be on and the resultant circuit will be, मैंने diode को on दिखा दिया. I drew the complete circuit and replace the diode with a short circuit, because it is already given that the diode is ideal in nature. So now I told you that whenever the diode will be on, we can read the output voltage directly and we have to calculate the capacitor voltage. We will be doing the same thing over here. Now if I try to inspect the circuit, the output voltage can be directly written as, अब आप ज़रा इस सर्किट को देखें, जो वोल्टेज इस डायोड का है वही इस रेजिस्टर का भी होना चाहिए. अब होगा क्या, डायोड जब शॉर्ट हुआ तो जो वोल्टेज इसके इस टर्मिनल पर है वही वोल्टेज इसके इस टर्मिनल पे आ गया. अब अगर यहाँ पे आप कह रहे हैं आपने वोल्ट मीटर लगाया इसके पैरेलल में यहाँ पर, तो वोल्ट मीटर क्या रीड कर रहा होगा, वोल्ट मीटर इस वोल्टेज और इस वोल्टेज का जब डिफरेंस निकालेगा वोल्ट मीटर इसको 0 रीड कर रहा होगा. अच्छा, यहाँ से रेजिस्टर का इफेक्ट कहाँ चला गया, ये बात आप सबको पता होगी कि करंट हमेशा कम तरीन रेजिस्टेंस के रास्ते को फॉलो करता है. अगर करंट को ये रास्ता नज़र आ रहा है हैविंग नो वोल्टेज ड्रॉप, और करंट को ये रास्ता नज़र आ रहा है having some large resistance, by default current will automatically go through this path. ऑटोमेटिकली करंट इसमें से गुजरेगा, रेजिस्टर वाले में से गुजरेगा ही नहीं. क्यों नहीं गुजरेगा, करंट लीस्ट रेजिस्टेंस के रास्ते से गुजर जाता है. तो जब इसको यहाँ पर ये शॉर्ट पाथ अवेलेबल होगा, करंट ऑटोमेटिकली यहाँ से यहाँ गुजरेगा. इसका मतलब है इस वक्त इन दोनों में से जो कंपोनेंट वोल्टेज डिटरमाइन कर रहा होगा वो डायोड होगा, वो रेजिस्टर नहीं होगा.
ठीक है, क्योंकि डायोड शॉर्ट हुआ, उसने 20 रेजिस्टेंस दी, डायोड का इफेक्ट डोमिनेंट हो गया, इसका वोल्टेज अब रेजिस्टर पे आ जाएगा। अब क्या होगा, जब इस पॉइंट और इस पॉइंट का वोल्टेज बराबर है, वोल्ट मीटर ने 0 दिखाया, तो रेजिस्टर के अक्रॉस भी 0 वोल्टेज आ गया। जब रेजिस्टर के अक्रॉस 0 वोल्टेज आ गया तो V इक्वल टू आई आर की लॉजिक लगाएं। जब आपका V 0 आ रहा है तो रेजिस्टर का करंट भी 0 आ रहा है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि इस सर्किट में डायोड जैसे ही ऑन होता है और शॉर्ट होता है, रेजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज भी 0 हो जाएगा और उसका करंट भी 0 हो जाएगा। दिस पार्ट विल बी वर्किंग इन द सर्किट। यानी कि जब डायोड ऑन हुआ तो मैंने क्लियरली सर्किट को देख के इसका आउटपुट वोल्टेज पढ़ लिया। इस आउटपुट वोल्टेज से मैं कैपेसिटर का वोल्टेज कैलकुलेट करूंगी, जो कि क्या होगा, केवीएल से पता चलेगा। माइनस ऑफ वी एन प्लस ऑफ वी सी प्लस द वोल्टेज बिटवीन दीज पॉइंट्स विच इज वी नॉट, माइनस ऑफ वी एन प्लस ऑफ वी सी प्लस द वोल्टेज बिटवीन द पॉइंट्स विच इज वी नॉट। वी नॉट की वैल्यू मुझे 0 पता है। अब ये बहुत ज़रा क्लियरली देखने की है कि इस वक्त मैं किस साइकिल की बात कर रही हूँ। मैं इस वक्त पॉजिटिव साइकिल की बात कर रही हूँ। तो पॉजिटिव साइकिल में इनपुट की जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ पुट करनी है, अंधाधुन कोई भी वैल्यू उठा के पुट नहीं कर देनी है। आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव साइकिल। तो इसमें जो वी इन की वैल्यू मैं पुट करूँगी +20 पुट करूँगी। माइनस वी इन तो माइनस केवीएल का था, वी इन की वैल्यू 20 मैंने पुट की और कैपेसिटर का वोल्टेज मुझे पता चल गया 20 वोल्ट है। ये बात मैंने पहले ही बताई थी कि जिस साइकिल में डायोड ऑन होगा उस साइकिल का आउटपुट वोल्टेज सर्किट को देख के क्लियरली नज़र आ रहा होगा और उस साइकिल में हम कैपेसिटर के वोल्टेज को कैलकुलेट कर रहे होंगे। ये हमने कर लिया। अगली साइकिल में वी नॉट मुझे पता नहीं होगा, अगली साइकिल में मुझे वी नॉट पता नहीं होगा, मुझे वी नॉट को फाइंड करना होगा और उसको फाइंड करने के लिए मैं इस कैपेसिटर के वोल्टेज को इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि मुझे ये बात बहुत क्लियर पता है कि कैपेसिटर अगर एक दफ़ा वोल्टेज स्टोर कर लेता है तो उस वोल्टेज को वो रिटेन रखता है। तो अगली साइकिल में कैपेसिटर ने जो वोल्टेज अभी स्टोर किया है वो उसको रिटेन रखेगा। तो इस कैपेसिटर वोल्टेज से अगली साइकिल का वोल्टेज मैं कैलकुलेट करूंगी। और एक टिप मैं आपको बता दूं कि तमाम के तमाम क्लैम्पर सर्किट में जो केवीएल की इक्वेशन होती है वो यही होती है। चेंज सिर्फ वीसी की, वी नॉट की और वी इन की वैल्यू में आता है। आगे जाके आप देखिएगा हर सर्किट की ऑलमोस्ट यही इक्वेशन बन रही होगी। हम 2-3 सर्किट्स देखेंगे, तमाम क्लैम्पर की इक्वेशन केवीएल की यही बनती है। वी इन, वी सी, वी नॉट की वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। लेट अस सी, इवन इसके नेगेटिव साइकिल में भी ऐसे ही होगा। अभी देखते हैं। अब मुझे ये सर्किट नेगेटिव साइकिल में स्टडी करना है तो मैं क्या करूँगी, यही पूरा सर्किट दोबारा ड्रॉ करूँगी, बट हेयर आई विल बी रिप्लेसिंग द डायोड विथ एन ओपन सर्किट। अब अगर मैंने डायोड को ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक नॉर्मल वैल्यू का रेजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ एक ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट का मतलब क्या हुआ, ओपन सर्किट का मतलब हुआ कि यहाँ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। एक रेजिस्टेंस ये लगी है कोई भी नॉमिनल वैल्यू की। डायोड जब ओपन सर्किट हो रहा है तो वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। अब इस केस में कौन सी रेजिस्टेंस जो है वो सर्किट में इन होगी या अफेक्टिव होगी, यकीनन करंट को फिर से छोटी रेजिस्टेंस इन दोनों के दरमियान जो नज़र आएगी वो उसको फॉलो करेगा। तो जैसे ही डायोड ओपन सर्किट होगा इसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगी, करंट ऑटोमेटिकली इसके रास्ते को छोड़ के अब इस रास्ते को अपना पाथ बना के अपना काम कंप्लीट करेगा। यही चीज़ मैंने अगली डायग्राम में दिखाई है। लेट अस सी दैट। मैं करूँगी क्या, इसकी जगह ओपन सर्किट दिखाऊंगी, रिमेनिंग चीज़ें सेम हैं, लेकिन मुझे ये भी देखना है कि जब मैं अगला पार्ट बना रही हूँ तो ये जो वी इन है मैं इस पार्ट के लिए काम कर रही हूँ, नेगेटिव साइकिल के लिए। अब देखें मैंने क्या बताया कि नेगेटिव साइकिल के दौरान डायोड ऑफ होगा, रिजल्टेंट सर्किट क्या बनेगा, सब कुछ एज इट इज बनाया है, डायोड को ऑफ दिखाया है। डायोड का रोल ख़त्म इसलिए हो गया कि दो रेजिस्टर्स एक तरह से ये पैरेलल में हैं, इसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, इसकी कोई फाइनाइट वैल्यू होगी जो कि ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। इसकी वजह से इनफाइनाइट के मुकाबले में तो ज़ाहिर है ये कम होगी, तो सर्किट इसके थ्रू कंप्लीट होगा। अब मुझे क्या करना है, इस पार्ट के ऊपर केवीएल लगाना है, बाहर वाला ये जो सिलसिला चल रहा है ये
इस पार्ट पे केवीएल लगाना है। आसान बात यह है कि केवीएल की इक्वेशन चाहे ये सर्किट हो, पॉजिटिव साइकिल हो, नेगेटिव साइकिल हो, सेम रहती है। मैंने अभी बताया है ये भी यही रहेगी, माइनस ऑफ वी इन प्लस ऑफ वी सी, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज का नाम क्या है, वी नॉट, माइनस वी इन प्लस वी सी प्लस वी नॉट इक्वल टू 0। वी नॉट इस केस में मुझे नहीं पता, मैं फाइंड कर रही हूँ, मैंने वी नॉट को एज इट इज रखा। वी सी की वो वैल्यू जो प्रीवियस साइकिल में आई थी जो कि 20 थी, वो मैंने पुट कर दी। ये माइनस केवीएल का है। नेगेटिव साइकिल के दौरान वी इन की अपनी वैल्यू क्या थी, वी इन की अपनी वैल्यू थी -20। तो अब मेरे पास वी नॉट की वैल्यू बची है -40 वोल्ट। कैलकुलेट करके आ गई। अब ज़रा आउटपुट पे आते हैं। मैंने ये इनपुट वेव बना दी, मैंने +20 दिखा दिया, -20, +20 दिखा दिया, -20। पॉजिटिव साइकिल के दौरान मुझे आउटपुट सर्किट को देखते ही नज़र आ रहा था, वो क्या था, 0। ओके, यू कैन क्लियरली सी दैट दिस इज़ द पॉजिटिव साइकिल। यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल में आउटपुट क्या आ रहा था हम ऑलरेडी जो है वो कैलकुलेट करके या सर्किट से डायरेक्टली ऑब्जर्व कर चुके हैं, वो 0 वोल्ट था। तो जहाँ जहाँ पॉजिटिव साइकिल आई है वहाँ पे मैंने 0 वोल्ट बना दिया। फिर यहाँ पॉजिटिव साइकिल आई है, मैंने यहाँ पर 0 वोल्ट बना दिया। नेगेटिव साइकिल में जो वी नॉट है वो मैंने भी कैलकुलेट किया है, वो कितना आ रहा है, -40 वोल्ट आ रहा है। तो नेगेटिव साइकिल जहाँ जहाँ आ रही थी मैंने उस पर बनाया क्या, अंदाजे से बनाया, -40 वोल्ट बना दिया। फिर यहाँ नेगेटिव साइकिल आई, -40 वोल्ट बना दिया। नाउ वी शैल ट्राई टू सी व्हाट इज हैपनिंग। देखें, इसका जो सेंटर लाइन थी वो कहाँ थी, 0 वोल्ट पे थी, +20 और -20। इसकी सेंटर लाइन कहाँ है, देखें ये 0 से लेके -40 हो गया। तो अगर मैं इसका एवरेज ले लूँ, 0 -40, मैक्सिमम वैल्यू माइनस द मिनिमम वैल्यू, 0 -40 डिवाइड बाय 2 करूँ तो आंसर आ जाएगा 20 वोल्ट। यानी 20 वोल्ट सेंटर लाइन की वैल्यू नहीं आ रही है, ये तो बाहर प्लस में आ रही है। 0 से 20 वोल्ट मैं नीचे आऊँ तो यहाँ पे इसकी सेंटर लाइन पड़ेगी। ये कितना आ गया, -20 पे इसकी सेंटर लाइन आ गई। ठीक है, तो सिंस दिस क्लैम्पर शिफ्टेड द रेफरेंस वोल्टेज टू अ नेगेटिव वैल्यू, दिस विल बी कॉल्ड एज अ नेगेटिव क्लैम्पर। सेंटर वैल्यू कैसे फाइंड की है, 0 माइनस ये वाली वैल्यू डिवाइड बाय 2, जो आंसर आएगा वो +20 में होगा। अब या तो मैं 0 से 20 वोल्ट नीचे आ जाऊं या -40 से 20 वोल्ट ऊपर आ जाऊं, एक ही बात है। वो जो भी पॉइंट बन रहा होगा वो मेरा रेफरेंस लाइन होगा। हम आगे भी जाके इसी तरह से कैलकुलेशन करेंगे। लेट अस नाउ गो टू द नेक्स्ट सर्किट। Okay, now we are on question number 2 of clamper circuits. We can clearly see that we have to consider the diode as an ideal one, and we have to sketch and compute the output signal for the given circuit. Okay, there are some values which are not written over here, but I will be presenting them at the end of the numerical, which will be the frequency of the input waveform, the value of the capacitor voltage, and the value of this resistor. For simplicity purpose, I have not marked these figures over here, the frequency, the value of capacitor, and the value of the resistor, but they will be used at the end of this numerical, and I will be presenting them then. Okay, one thing more to note in this clamper circuit is that here the input waveform has a value of +10 during the positive cycle and has a value of -20 during the negative cycle. So we have to be very careful while inserting these values in the KVL equation. Now, starting with the solution of our circuit, we can clearly see by looking at the direction of the diode is that the diode will be on during the negative cycle of input. It is now important for all of you to understand that whenever the positive terminal of the diode is on the top side, it turns on with positive voltages. Whenever the negative terminal of the diode is upside, it turns on with negative voltages or smaller voltages. Okay, this
diode's direction gives me intuition that it will be turning on during the negative cycle of the diode. And in the basics of the clamper, I already told you that whenever we see that wherever the diode is turning on, in whichever cycle the diode will be turning on, we will be starting our calculation from that cycle. So based on this, first of all, I will not be solving for the positive cycle first. I will be starting my solution with the negative cycle. What I have done, I have written during the negative cycle the diode will be on and the resultant circuit will be. मैंने क्या कहा, नेगेटिव साइकिल के दौरान डायोड ऑन हो जाएगा और उसका रिजल्टेंट सर्किट कुछ ऐसा निकलेगा. वी इन कैपेसिटर की वैल्यू, डायोड की जगह मैंने आइडियल दिखाया, 5 वोल्ट सप्लाई वहाँ है, रजिस्टर वहाँ है, वी नॉट वहाँ है. ओके, मैंने यहाँ कैपेसिटर रजिस्टर की वैल्यूज अभी फ़िलहाल लिख तो दी हैं, बट दे विल नॉट बी यूज हियर नाउ. वी विल बी यूजिंग दैम एट द एंड ऑफ द सर्किट. Okay, now I told you that whenever the diode turns on in any cycle, we can read the output voltage directly and we calculate the capacitor voltage from that cycle, right? So if I try to inspect this circuit and if I try to see both these, of course the diode has become short circuit over here, but there is a fixed supply of 5 volt now in parallel to the resistor. Therefore it is very much clear and very much evident then when a fixed DC bias voltage is available. ये तो शॉर्ट होके ज़ीरो हो चुका, तो भाई अगर मैं इन टर्मिनल्स के ऊपर वोल्ट मीटर लगाऊंगी तो क्या होगा, वोल्ट मीटर 5 वोल्ट ही रीड करके देगा. एंड दिस विल बी द सेम वोल्टेज अपियरिंग अक्रॉस द 100 किलो ओम और दिस रजिस्टर, एंड इट विल बी it will be carrying some amount of current, of course, but its voltage will be 100% 5 volt, and I am only concerned about voltages across this 5 volt supply and this resistor, that will be 5 volt constant and V0 will be 5 volt. सिंपल अल्फाज में जब यहाँ पे डायोड शॉर्ट सर्किट हो गया तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक ही वोल्टेज एग्जिस्ट कर रहा है, 5 वोल्ट. यही 5 वोल्ट इस रजिस्टर पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं बड़ा क्लियरली देखते ही बता सकती हूँ दैट द V0 फॉर दिस सर्किट इज़ 5 वोल्ट. I told you that the output voltage can be seen directly while the capacitor voltage will be calculated during the on cycle. और मैंने ये भी बताया था that the KVL for almost all of the circuits remain the same. I have to apply the KVL in this part only. I can apply here also, लेकिन फिर चाहे यहाँ अप्लाई करूँ यहाँ अप्लाई करूँ, it will be giving me the same result. माइनस ऑफ वी इन प्लस ऑफ द कैपेसिटर वोल्टेज और यहाँ से यहाँ का वोल्टेज, चाहे इस सप्लाई की मदद से लिखूँ चाहे रजिस्टर की मदद से लिखूँ, दोनों का वोल्टेज एक ही है. यहाँ आ गया ज़ीरो और इसकी जगह आ गया वी नॉट. माइनस वी इन प्लस वी सी प्लस वी नॉट, माइनस वी इन प्लस वी सी, यहाँ से यहाँ तक वी नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो. वी नॉट की वैल्यू मुझे साइकिल में पता है 5 वोल्ट. कैपेसिटर का वोल्टेज मैं कैलकुलेट कर रही हूँ. मुझे ये याद होना चाहिए दैट आई एम एट द नेगेटिव साइकिल ऑफ द इनपुट वेव फॉर्म. नेगेटिव साइकिल में वोल्टेज की वैल्यू क्या है, द वैल्यू इज़ -20 वोल्ट. तो माइनस तो मेरे KVL का लगा हुआ है, वी इन की जगह आई प्लेस द वैल्यू ऑफ -20 एंड आई गॉट कैपेसिटर वोल्टेज टू बी -25. थोड़ा सा ये इंट्यूशन भी आपके अंदर डेवलप हो जाना चाहिए कि दैट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट नेगेटिव साइकिल, the voltage stored by the capacitor should be negative. And in the previous numerical when I said that the capacitor is on during the positive cycle, then the voltage that was stored by the capacitor was the positive voltage. तो अगर डायोड मुझे पॉजिटिव साइकिल में ऑन होते हुए नज़र आ रहा है तो कैपेसिटर ने भी पॉजिटिव वोल्टेज स्टोर किया हुआ होना चाहिए. यूजुअली यही होगा अनलेस एंड अनटिल कि ये DC सप्लाई की वैल्यू बहुत ज़्यादा कोई चेंज और डिफरेंट ना हो. ठीक है, और नेगेटिव साइकिल के दौरान अगर डायोड ऑन नज़र आ रहा है तो जो कैपेसिटर ने वोल्टेज स्टोर किया है वो भी नेगेटिव होना चाहिए. ये भी उसी बात पे कह रही हूँ कि ये DC सप्लाई की वैल्यू 5-4 वोल्ट के अंदर हो, यानी इनकी इसके अंदर अंदर हो तो ऐसे ही होगा. लेट अस नाउ गो टू द पॉजिटिव साइकिल नाउ एंड सी कि जब डायोड ऑफ होगा तो क्या होगा. पॉजिटिव साइकिल के अंदर आई विल बी ड्रॉइंग द एग्जैक्ट सर्किट. आई विल बी keeping this terminal as open circuit and assuming that the diode will be on during the negative cycle. See,
आई हैव ड्रॉन द कंप्लीट सर्किट अगेन, डायोड को मैंने ओपन सर्किट से रिप्लेस किया. नाउ प्लीज नोट दैट दिस 5 वोल्ट इज नॉट वी नॉट. ये 5 वोल्ट वी नॉट नहीं है, नीदर दिस ओपन सर्किट वोल्टेज इज वी नॉट. नो, द वोल्टेज appearing across both of them will be V naught, right? And it should be very clear to us that this branch will not be carrying any current because of this broken connection or open circuiting of the diode. तो पता क्या चल रहा है कि अब जो KVL होगा, जो करंट बेसिकली फ्लो कर रहा होगा वो यहाँ फ्लो कर रहा होगा. दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो, आई मीन दिस विल बी द पाथ ऑफ द करंट फ्लो. ठीक है, अब मैं पॉजिटिव साइकिल की बात कर रही हूँ क्योंकि ये वो साइकिल है वेयर द डायोड इज ऑफ. आई विल हैव टू फाइंड V naught एंड आई विल बी यूजिंग द कैपेसिटर वोल्टेज कैलकुलेटेड इन द प्रीवियस साइकिल. यही काम हम करेंगे, लेकिन हम KVL लगाएंगे इसके लिए. माइनस ऑफ Vn प्लस ऑफ Vc प्लस यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज जो कि V naught है, यही लगाया. माइनस Vn प्लस Vc प्लस V naught. V naught इस साइकिल में मुझे फाइंड करना है. The capacitor voltage I calculated in the previous cycle was minus 25. This minus is from the KVL formula. पॉजिटिव साइकिल की बात हो रही है. सिंस आई एम सॉल्विंग फॉर द पॉजिटिव साइकिल, मैंने V इन की वैल्यू वो रखी 10 वोल्ट जो पॉजिटिव साइकिल में V इन की वैल्यू थी. आई गॉट V naught as plus 35 volt. Now I have the output voltages available for both the positive and negative cycle. I have to draw them very clearly. This V naught equal to 35 corresponds to the output of positive voltage, not the negative. तो पॉजिटिव जहाँ पे इनपुट था, ये 10 वोल्ट पॉजिटिव है, माइनस 20 नेगेटिव है. 10 वोल्ट पॉजिटिव है, माइनस 20 नेगेटिव. 10 वोल्ट जहाँ इनपुट था, आई एम गेटिंग द आउटपुट एज 35. आई हैव जस्ट कैलकुलेटेड. जहाँ माइनस 20 था, द आउटपुट इज 5. पिछले वाले साइकिल को चेक करिएगा. अब मेरे पास 35.5 की वेव्स आ रही हैं. आई हैव टू फाइंड द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस वेव फॉर्म. व्हाट आई कैन डू, मैक्सिमम माइनस मिनिमम कर लूँ. 35 माइनस 5 एंड डिवाइड बाई 2. 35 माइनस 5 डिवाइड बाई 2. 15 वोल्ट इज़ नॉट माई सेंटर लाइन. आई एम अगेन रिपीटिंग, मेरी सेंटर लाइन 15 वोल्ट पे नहीं है. मैं या तो 5 वोल्ट से 15 वोल्ट ऊपर चली जाऊँ या तो 35 वोल्ट से 15 वोल्ट नीचे आ जाऊँ. तो क्या होगा, 35 से 15 वोल्ट नीचे 20 वोल्ट, या 5 वोल्ट से 15 वोल्ट ऊपर 20 वोल्ट. एक ही आंसर आ रहा है. यानी कि सेंटर लाइन अब मेरी कहाँ शिफ्ट हो गई है, 20 वोल्ट पे शिफ्ट हो गई है. लेट मी अगेन हेल्प यू टू फाइंड इट. मैक्सिमम माइनस मिनिमम, 35 माइनस 5 किया, डिवाइड बाई 2 किया, 15 वोल्ट मेरा आंसर आया. दिस 15 वोल्ट इज़ नॉट द सेंटर लाइन, बल्कि 35 से 15 वोल्ट नीचे आऊँ तो सेंटर होगा जो कि 20 बन रहा है, या 5 से 15 वोल्ट ऊपर चली जाऊँ तो सेंटर होगा, वो भी 20 बन रहा है, सेम ही आएगा ज़ाहिर आंसर. तो 20 वोल्ट इज एक्चुअली माई सेंटर लाइन. नाउ आई कैन सी दैट दिस क्लैम्पर सर्किट एक्चुअली शिफ्टेड द रेफरेंस लाइन ऑफ माई सर्किट टू अ पॉजिटिव वैल्यू. दिस सर्किट कैन बी कॉल्ड एज अ पॉजिटिव क्लैम्पर. और चूंकि इसमें एक सप्लाई लगी हुई थी, DC सप्लाई, मैंने इसको कहा बाइस्ड पॉजिटिव क्लैम्पर. ये पॉजिटिव क्लैम्पर तो था लेकिन बाइस्ड नेचर का था. ठीक है, यहाँ एज सच क्लैम्पिंग का जो इनपुट आउटपुट की कैलकुलेशन है वो ख़त्म होती है. सो फार इन क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 1 वी डिड नॉट, आई मीन consider, or we did not give any importance to the value of the capacitor and the resistor and the frequency of the input waveform. देखिए, let me go to the next slide. देखिए, so far we haven't given any importance to the value of, you know, capacitor, resistor or the input frequency of the waveform. देखिए, we all should know that capacitor is a voltage storing component. It cannot be charged in zero time, it cannot be discharged in zero time. It will take either few seconds, microsecond, nanoseconds, but it will take some time to charge or discharge. इस वक्त अगर आप इस सर्किट को देखें तो एक चीज़ देख लें, डायोड जब कभी भी ऑन हो रहा है, ये बात मैंने पहले भी बताई है, व्हेन एवर द डायोड इज टर्निंग ऑन
the capacitor is charging in that cycle, because we are calculating the capacitor voltage in that cycle. And whenever the diode is turning off, we are using the capacitor voltage of the previous cycle. तो जो हम प्रीवियस साइकिल का कैपेसिटर वोल्टेज इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम इस अजम्पशन पे इस्तेमाल कर रहे हैं कि इस प्रीवियस साइकिल में जबकि डायोड ऑफ हो चुका है, कैपेसिटर ने जो पिछली साइकिल में वोल्टेज स्टोर किया था वो कैपेसिटर मेंटेन रख रहा है, वो डिस्चार्ज नहीं हो जा रहा। हमने अभी 2 न्यूमेरिकल किए, एक साइकिल में कैपेसिटर का वोल्टेज कैलकुलेट किया, दूसरी में उसके वोल्टेज को इस्तेमाल किया। जिस साइकिल में हम वोल्टेज इस्तेमाल कर रहे हैं दर हकीकत उस साइकिल में कैपेसिटर ने डिस्चार्ज होना था, लेकिन मैं कैपेसिटर का पिछला वाला ही वोल्टेज लेके इस्तेमाल करी हूँ इस अजम्पशन से कि जिस साइकिल में कैपेसिटर ने डिस्चार्ज होना था वो बहुत कम डिस्चार्ज हो रहा है, रफली उसका वोल्टेज मेंटेन रह रहा है, जब भी मैंने बड़े आराम से अगली साइकिल में कैपेसिटर का स्टोर्ड वोल्टेज पिछला वाला यूज़ कर लिया। अब अगर मैं ज़रा कैपेसिटर, रेजिस्टर और इनपुट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को देखूं तो मुझे ये बात देखनी चाहिए कि मैं बड़े आराम से जो पिछली साइकिल के वोल्टेज को इस्तेमाल कर रही हूँ, इज़ इट ओके टू डू इट और नॉट। क्यों, अब देखते हैं। देखें, मैं सबसे पहले इसी सर्किट को थोड़ा सा एग्जाम्पल दूंगी। आर की वैल्यू मैंने ली 100 किलो ओम, कैपेसिटर की वैल्यू ली सपोज 0.1 माइक्रोफैरड, फ्रीक्वेंसी सर्किट की इनपुट वेव की थी 1000 हर्ट्ज। मैंने आर और सी का प्रोडक्ट निकाल लिया, ये टाइम कांस्टेंट कहलाता है। आई होप कि BEE के अंदर आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में पढ़ा हो टाइम कांस्टेंट आर, टॉ आर इंटू सी। आर और सी का जब मैंने प्रोडक्ट लिया, ये आंसर तकरीबन 10 मिली सेकेंड बन रहा है। मैंने इस टॉ की वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई भी किया, 50 मिली सेकेंड आंसर आ रहा है। ये बता क्या रहा है ये देखते हैं। अगर किसी कैपेसिटर के रास्ते में इतनी वैल्यू की रजिस्टर लगी होगी या लगा होगा तो उस कैपेसिटर के चार्जिंग में इतना टाइम लगेगा, और अगर किसी कैपेसिटर के डिस्चार्जिंग के रास्ते में इतनी बड़ी वैल्यू का रजिस्टर लगा होगा तो उसके डिस्चार्जिंग में इतना टाइम लगेगा। मैंने 5 टॉ क्यों कहा है, देखें कैलकुलेशंस की दुनिया में अगर किसी भी चीज़ की वैल्यू अपनी मैक्सिमम वैल्यू से लेके 70% तक के अंदर होती है तो हम उसको मैक्सिमम वैल्यू ही कंसिडर करते हैं। जब वो वैल्यू अपनी 70% से डिक्रीज़ कर जाए तो हम कहते हैं हाँ ये चीज़ अब डिस्चार्ज हो गई, मैक्सिमम से हट गई बेसिकली। ठीक है, दोबारा बता रही हूँ, अगर कोई मेरी वैल्यू किसी भी जगह पे 5 वोल्ट आ रही है, अगर वो डिक्रीज़ होके बाय एनी एरर 70 वोल्ट तक चली गई, 50 का 70% आप 5 वोल्ट का 70% निकाल लें, जब तक ये वैल्यू इस रेंज में है 5 से लेके 70% ऑफ 5 वोल्ट, ये वैल्यू लॉजिक हाई कहला रही है, मतलब इसको मैं कंसिडर करी हूँ कि 5 वोल्ट ही है। लेकिन जैसे ये 70% से कम होगी हम कंसिडर कहेंगे कि ये डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, ये वैल्यू इसकी हाई से ख़त्म हो गई है। आसान अल्फाज में 5 टॉ का क्या मतलब है, 5 टॉ के अंदर कोई भी कैपेसिटर अपनी मैक्सिमम वैल्यू से 70% वैल्यू तक रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, कुछ बुक्स में 5 टॉ लिखा है, कुछ बुक्स के अंदर 3 टॉ लिखा है कि 3 टाइम कांस्टेंट आरसी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, 3 टाइम कांस्टेंट के बाद कैपेसिटर अपनी 70% से ज़्यादा वैल्यू खो देता है, कुछ बुक्स में ये लिखा है, और कुछ बुक्स में लिखा है कि 5 टाइम कांस्टेंट के बाद कैपेसिटर जो है वो अपनी 70% वैल्यू खो देता है। मैंने ये 5 टॉ वाली लॉजिक यूज़ की है क्योंकि बुक में यही लिखा हुआ था। अच्छा, ये बता क्या रहे, 5 टॉ का मतलब है कि 5 टॉ के बाद कैपेसिटर की जो वैल्यू होगी वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू से 70% रिड्यूस कर जाएगी। ये यहाँ इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया। आफ्टर 5 टॉ द कैपेसिटर लूजेस इट्स स्टोर वैल्यू बाय 70%। 70% बाय नहीं होना चाहिए, 270% होना चाहिए, अपनी 70% वैल्यू खो। अच्छा, एट द सेम टाइम मैंने क्या किया, बताया कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 1000 थी, मैंने उससे वेव का टाइम पीरियड निकाल लिया। इनपुट की वेव का टाइम पीरियड आ रहा था 1 मिली सेकेंड। 1 मिली सेकेंड टाइम पीरियड का क्या मतलब है, पॉजिटिव, एक पूरी पॉजिटिव साइकिल, एक पूरी नेगेटिव साइकिल, इन दोनों का टाइम जो मिला के निकला वो क्या निकला 1 मिली सेकेंड। तो सिर्फ पॉजिटिव वेव कितने साइकिल की होगी, आई मीन कितना टाइम की होगी, 1 मिली सेकेंड डिवाइड बाई 2,
पता ये चल रहा है कि पॉजिटिव वेव 0.5 मिली सेकेंड की होगी, नेगेटिव वेव भी 0.5 मिली सेकेंड की होगी। मैं इस सर्किट की रिस्पेक्ट से बात करती हूँ। फिर अगली पॉजिटिव वेव चलेगी 0.5 मिली सेकेंड, फिर अगली चलेगी 0.5 मिली सेकेंड, ठीक है ना। 0.5 मिली सेकेंड में सब चल रहा है। अब होगा क्या, मैंने ये कहा कि इस सर्किट में नेगेटिव साइकिल के दौरान कैपेसिटर चार्ज हो गया, चलो हो गया भाई, ठीक है। डिस्चार्ज होने के लिए इसके पास कितनी देर दरकार थे, यानी कि पॉजिटिव साइकिल के दौरान इस बात के चांसेस थे ना कि कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता क्योंकि डायोड ऑफ था। इस साइकिल का टाइम था 0.5 मिली सेकेंड, यानी कि 0.5 मिली सेकेंड की देर तक कैपेसिटर के पास चांस था कि वो डिस्चार्ज हो जाए। अब कैपेसिटर अगर सपोज करें यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग टाइम 0.5 मिली सेकेंड, मैंने क्या कैलकुलेट किया है कैपेसिटर डिस्चार्ज कब होगा, मैंने कैलकुलेट किया है कि 50 मिली सेकेंड के बाद जाके कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। यानी कि इस टाइम से आगे चलती जाऊं, कहीं आगे जाके जो 50 मिली सेकेंड आ रहे होंगे, जो कि देखिए मेरी स्लाइड को भी क्रॉस कर जाएगा, यहाँ कहीं जाके 50 मिली सेकेंड पूरे होंगे और कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि 50 मिली सेकेंड तो बहुत आगे जाके आ रहा होगा। इस 0.5 मिली सेकेंड के टाइम पे रफली कैपेसिटर का वही वोल्टेज होगा जो मैंने पिछली साइकिल में कैलकुलेट किया था। क्यों? क्योंकि वो 50 मिली सेकेंड पे जाके अपनी 70% वैल्यू को खोएगा। तो रफली यहाँ से लेके अगले 0.5 मिली सेकेंड का जो टाइम है, जो मेरी पॉजिटिव साइकिल है, छोटी सी वेव फॉर्म, उसमें तो कैपेसिटर का वोल्टेज कांस्टेंट ही रह रहा होगा। सही है। तो मैंने जो अपना न्यूमेरिकल सॉल्व किया, इस अजम्पशन से सॉल्व किया कि नेगेटिव साइकिल में तो कैपेसिटर ने स्टोर किए वोल्टेजेस, ठीक है। मैंने इस अजम्पशन पे सॉल्व किया कि पॉजिटिव साइकिल के दौरान कैपेसिटर ने जो वोल्टेज पहले स्टोर किया था वो मेंटेन रहेगा। मैंने बिल्कुल सही अजम्पशन किया, क्योंकि ये जो डिस्चार्जिंग का स्पैन इसको अवेलेबल है वो 0.5 मिली का अवेलेबल है। उसने तो कहीं आगे 50 मिली पे जाके डिस्चार्ज होना था। उस पॉइंट पे पहुंचने से पहले ही अगली चार्जिंग की साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाएगी, जो कि नेगेटिव साइकिल है, तो वो तो फिर से चार्ज हो जाएगा, मसला ही नहीं है, चल गया। क्या होता अगर इस फ्रीक्वेंसी में कुछ चेंज आ जाता? अगर मैं ऐसा कहूँ कि ये जो साइकिल है पॉजिटिव साइकिल, ये चलने वाली थी 100 मिली सेकेंड तक, तो क्या होगा? तो उसके किसी बीच के टाइम पे मेरा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो चुका होगा। अगर किसी को इतनी कैलकुलेशन सपोज समझ में नहीं आ रही है, मैं आसान अल्फाज में ये बता रही हूँ कि आप ये सारी कैलकुलेशन कर लीजिएगा। टॉ की वैल्यू कैलकुलेट करें, 5 टॉ की वैल्यू कैलकुलेट करें, टाइम पीरियड कैलकुलेट करें, उसको डिवाइड बाय 2 कर लें और आखिर में चेक कर लें कि अगर 5 टाइम ऑफ टॉ इस वैल्यू से बड़ा आ रहा है तब तो मेरा सर्किट प्रॉपर्ली चल जाएगा, क्योंकि जो मैंने अजम्पशन की है कि वोल्टेज कैपेसिटर का मेंटेन रहेगा वो सही होगी। लेकिन अगर ये 5 टॉ का फैक्टर छोटा आता है तो इसका मतलब ये है कि डिस्चार्जिंग के लिए कैपेसिटर को बहुत ज़्यादा टाइम अवेलेबल है। सपोज करें कि 100 मिली सेकेंड डिस्चार्जिंग के लिए अवेलेबल है, तो कैपेसिटर तो 50 मिली सेकेंड के बाद आके इसका पूरा वोल्टेज डिस्चार्ज हो चुका होगा, ठीक है। तो उस केस में जब भी 5 टॉ की वैल्यू स्मॉलर देन दिस वोल्टेज आ जाए, 1 मिली सेकेंड डिवाइड बाई 2.5 मिली सेकेंड, और ये भी देखें हर सर्किट की सेम नहीं होगी, ये मैंने 1000 फ्रीक्वेंसी थी उससे कैलकुलेट किया। 1000 फ्रीक्वेंसी पे ये आंसर ये आ रहा है, 5 टॉ का आंसर यहाँ से आ रहा है। जब भी आपका 5 टॉ फ्रीक्वेंसी से जो टाइम पीरियड निकला डिवाइड बाय 2 करके अगर उससे बड़ा आ रहा है तो सर्किट प्रॉपर्ली ऑपरेट करेगा, अदरवाइज प्रॉपर्ली ऑपरेट नहीं कर रहा होगा। बस आसान अल्फाज में ये याद रखें, ठीक है। अब अगर जो है आपने ट्राई करना है कि अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी RC की तो वैल्यू यही है, आप ट्राई कीजिएगा कि अगर फ्रीक्वेंसी इनपुट की 30 हर्ट्ज में रख दूं तो क्या मेरा सर्किट प्रॉपर्ली ऑपरेट करेगा। मुझे अपने सर्किट को प्रॉपर्ली ऑपरेट कराने के लिए पेपर पे पहले कैलकुलेशन करनी चाहिए कि 5 टॉ, ये जो कि 5 इंटू RC से कैलकुलेट होगा, उसकी वैल्यू मेरे इनपुट के टाइम पीरियड से जो मैंने फ्रीक्वेंसी से जो टाइम पीरियड निकाला है अगर बहुत बड़ी है तब तो मेरा सर्किट सही चलता हुआ मुझे नज़र आएगा ऑसिलोस्कोप के ऊपर, यानी कि एक्चुअल मीटर्स के ऊपर जो मेरे डिपार्टमेंट में है।
वरना मैंने पेपर की कैलकुलेशन करके बता तो दिया होगा कि शायद ये आंसर आ रहा है, प्रैक्टिकली जब आप उसको परफॉर्म करेंगे वो आपको वो रिजल्ट नहीं दे रहा होगा जो आपने कॉपी पे कैलकुलेट किया है। इसीलिए ज़रूरी है कि जब आप अपना सर्किट कॉपी पे बना के चेक कर रहे हैं और जो आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे उसमें सिमिलैरिटी कब आ सकती है, जब आप ये इंश्योर करें कि 5 टॉ की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है टाइम पीरियड डिवाइड बाय 2 से, तब तो आपका सर्किट चल जाएगा। अदरवाइज अगर ये चीज़ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो कॉपी पे तो आपने सॉल्व करके बना लिया, प्रैक्टिकली जब आप इस सर्किट को चलाएंगे या 30 हर्ट्ज़ की वेव देंगे तो आप देखेंगे, आप तो समझ रहे थे कि आपकी जो वेव है क्लैंप हो गई होगी, क्लैंपिंग नहीं हो रही होगी आपकी। ठीक है, तो प्रॉपर क्लैंपिंग करवाने के लिए हमें सर्किट बनाते वक्त और उस पर इनपुट की फ्रीक्वेंसी देते वक्त, उसमें कैपेसिटर लगाते वक्त, उसमें रजिस्टर लगाते वक्त ये ध्यान रखना होता है कि 5 RC हाफ ऑफ टाइम पीरियड से बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इफ़ देयर इज स्टिल एनी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग दिस लास्ट टॉपिक वी कैन डिस्कस इट इन द अपकमिंग लाइव सेशन इंशाल्लाह। ठीक है, फिर इसको हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह अब हम स्टार्ट करेंगे होपफुली ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स को, अगर डॉक्टर रियाज ने बाकी सारे डायोड्स के टॉपिक जो है वो कवर कर दिए हैं।